Okay, so we were learning about the types of the rocks. How many types of rocks are there? 3 types. Very good. And which are they? Yes, it's igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. We learned about the processes, how the igneous rocks are formed and how the sedimentary rocks are formed. And metamorphic के लिए कोई process नहीं होता. It is the चलो याद करो. Metamorphic rock. Yes. It is the mixture or it is the combination of the igneous and sedimentary rocks. Okay. Now, the process starts with a volcanic eruption. Volcano से ये process start होता है. Right? As soon as the volcano erupts, what comes out? Lava comes out. Then this lava spreads out in the surrounding area. It cools down, and then after cooling, it gets converted into solid form. Okay? After getting converted into solid form, there are cracks in the rocks, and these cracks are the igneous rocks formed on the surface of the earth. Clear? Now, these igneous rocks slowly and gradually they turn into small pieces. They settle down in the bottom of the river, and layers after layers of igneous rocks are formed. These layers, because of lot of pressure, they break down, and there is a change in their structure, composition, and characteristics. This changed structure rocks at the bottom of the water are known as sedimentary rocks. They are known as sedimentary rocks. And the same sedimentary rocks, they remain inside and they get mixed with the broken igneous rocks as well as the broken sedimentary rocks. And the combination of these two rocks, these two igneous and sedimentary rocks, जिसमें दोनों के features होते हैं, दोनों के minerals होते हैं. Those mixed rocks, combined form of rocks are known as metamorphic rocks. So are you very clear? All the 3 types of rocks, all of you? Okay, let's do the reading part. Page number 53. Have a pencil in hand. We are going to write the meanings of hard words in the textbook itself. Okay? So, what was the last meaning you had written? Verai, I think. V-A-R-Y, verai. ये लास्ट लिखा है, yes or no? कॉन्टिनेंटल मास के बाद तो लिखा था बेटा, याद करो. वेराई का डिफर ऐसा नहीं लिखा था. चलो ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. सी द टाइटल रॉक्स एंड पेज 53. The types of rocks vary depending on their properties. Vary meaning differ. Underline the word vary and write the meaning differ. मुझे तो पता ही है. So the types of rocks differ depending on their properties, particle size and formation process. In terms of formation process, rocks are of 3 types. Which is the first type? Igneous rocks. Let's start with what magma cools and solidifies. A rock formed in this way is called igneous rocks. There are 2 types of igneous rocks, inner rock and outer rock. अब ये तो हमने डिस्कस किया नहीं है. हमको क्या पता था कि whenever a volcano erupts, तो वॉल्केनो के आजू बाजू में ये जो मैग्मा है लावा स्प्रेड हो जाता है और देन द लावा कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड
पार्टिकल्स, उसमें क्रैक्स होते हैं और दैट रिजल्ट्स इनटू इग्नेयस रॉक्स। ठीक है, तो यही इग्नेयस रॉक्स, ये वाले इग्नेयस रॉक्स, इसका क्या होता है, दे सेटल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो थोड़े से रॉक्स यहीं पर रहते हैं और थोड़े से रॉक्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर दे गो इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, स्टॉर्म आता है, रेनफॉल होता है, ब्रेकिंग होता है, एंड ड्यू टू दिस द रॉक्स ट्रैवल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। है वही इग्नेयस रॉक्स, लावा में से ही फॉर्म हुए थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। उसके जो क्या बोलते कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट आर द सेम। समझ में आ रहा है, राइट। सो दोज इग्नेयस रॉक्स which remain on the surface of the earth are known as outer igneous rocks and the others are known as inner igneous rocks. Am I very clear, all of you? Yes. Now see the body given to us, एक information दिया है। Igneous means Latin word ignis meaning fire. Latin मतलब old English, पुराना इंग्लिश जो था उसमें फायर के लिए वर्ड था इग्निस, और हमें पता है कि फायर वो लावा में से बनता है। लावा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फायर, राइट। तो क्योंकि ये रॉक फायर में से बनता है, इग्निस मीनिंग फायर इन द लैटिन लैंग्वेज, एंड सो इट इज नोन एज इग्नेयस रॉक्स। डू यू गेट इट, ऑल ऑफ यू? सेडिमेंटरी रॉक्स, द लैटिन मीन्स स्टेबल। अब ये सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होता है, नीचे पानी के नीचे जाके वहां पर स्टेबल हो जाता है ना। तो स्टेबल को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेडिमेंटम, और उसपे से वर्ड आया सेडिमेंटरी। एनी डाउट्स, अंश? एंड मेटामॉर्फिक, द ग्रीक वर्ड, अब ये लैटिन में से नहीं आया, दिस इज फ्रॉम ग्रीक। द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस which means change in form. मेटामॉर्फोस मतलब सेडिमेंटरी या तो इग्नेयस के फॉर्म में चेंज होता है, तो इट इज नोन एज मेटामॉर्फोस, एंड फ्रॉम दैट द वर्ड कम्स मेटामॉर्फिक रॉक। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ द थ्री रॉक्स आर गिवन द नेम्स, उनका नामकरण कैसे होता है? इज इट वेरी सॉरी, ग्रीस इज अ बेटा, ग्रीस एक कंट्री है और ग्रीस की लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीस नहीं सुना आपने? ग्रीस इज द लैंग्वेज स्पोकन इज ग्रीक, और ग्रीक में मेटामॉर्फोस का मीनिंग होता है चेंज द फॉर्म। सो द रॉक गेट्स द नेम मेटामॉर्फिक रॉक। मैं वेरी क्लियर, ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स? ओके, नाउ यही प्रोसेस जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया कि इग्नेयस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं, वही प्रोसेस अभी हम रीड करने वाले हैं। कैन यू इमेजिन द लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनो? आंख बंद करो, आपको दिख रहा है वॉल्केनो में से लावा निकल रहा है ऐसा? कैन यू इमेजिन दिस? हमने देखा है पिक्चर्स में, मूवीज में, है ना। एक्चुअली द रेडिश मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मतलब लिक्विड जो मेल्ट हो गया है। अंडरलाइन द वर्ड मोल्टन एंड राइट द मीनिंग लिक्विड। Underline the word molten and the meaning is liquid. Okay? So actually the reddish molten magma coming out from the interior of the earth to its surface is lava. I think आपको पता है लावा किसको बोलते हैं, है ना? Until it is inside, it is known as magma. As soon as it comes out, it is known as lava. Okay? When this molten lava comes on the surface of the earth, it rapidly cools and becomes solid. अब हो जाता है solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. जो अभी हमने बात किया था, अगर आपको याद है तो, this is the surface of the earth. Okay? तो there are rocks on the surface of the earth also, and there are rocks in the interior of the earth also. Okay?
तो these surface वाले rocks, they are known as outer उसको बोलते हैं या तो आउटर इग्नेयस रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स। और ये जो इनर वाले रॉक्स है, अभी हमने जो अगले पेज में किया ना, उसको बोलते हैं या तो इनर रॉक्स या तो इंट्रूसिव। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव। ओके, कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे इनर और आउटर, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? Yes? Okay? Yes, Raj is raising his hand. Yes, Raj. राज थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा, कैन नॉट गेट यू। Okay, so rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks on the crust. They have a very fine grained structure. Grained मतलब in a powder form, एकदम पतला। Underline the word grained and write the meaning powdery. Powdery समझते हो आप लोग? Do you understand what is powdery structure? For example, basalt. Basalt is a type of extrusive igneous rocks. Basalt एक रॉक का नाम है और उसमें एकदम पाउडरी फॉर्म के मिनरल्स होते हैं और वो सरफेस पे मिलता है और इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स। क्लियर? समटाइम्स सॉरी, हाँ बोलो बेटा। Okay, so basalt is an example of extrusive igneous rocks. Now sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. वो magma चला जाता है नीचे, absorb हो जाता है। Solid rocks are formed which are called intrusive igneous rocks. Common language में उसको क्या बोलते हैं intrusive को? Inner rocks. Okay, inner rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. वो पाउडरी फॉर्म में नहीं होते, उनके पीसीज होते, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। आई थिंक ग्रेनाइट सबने देखा होगा, हमारे घर में किचन में जो प्लेटफॉर्म है ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, दैट इज ग्रेनाइट। इट इज वेरी हार्ड। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नेयस। समझ में आ रहा है? एक्सट्रूसिव इग्नेयस में आता है बेसल्ट, इंट्रूसिव इग्नेयस में आता है ग्रेनाइट। ओके, grinding stones used to prepare paste or powder of spices and grains are made up of granite. Grinding stones used to prepare paste or powder of spices. जो मसाले बनाने के लिए वो चक्की होती है, पता है आपको? पहले के जमाने में ऐसे हाथ से गोल गोल घुमाते हैं और अभी तो हम क्या है कि मिल में देते थे, वह मशीन में ग्राइंड है ना, गेहूं का बनता है, स्पाइसेस बनते, वो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना जिसमें से वो पीस कर निकलता है, वो ग्रेनाइट से बनते हैं। उतना हार्ड होता है ग्रेनाइट कि किसी भी चीज को वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। Am I very clear all of you? Okay, now comes the sedimentary rocks. हमें ऑलरेडी पता है नीचे पानी के नीचे दो लेयर्स ऑफ रॉक्स बनते हैं, वो पता है ना एक्सप्लेनेशन? Yes, let us do the reading part. Rocks roll down, crack and hit each other. You know what is rolling down? You know what are cracks? You know what are hit each other? टकराना। तो रॉक्स गिरते हैं, टकराते हैं, क्रैक्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो रॉक्स रोल डाउन, crack and hit each other and are broken down into small particles. These sediments meaning broken rocks. Underline the word sediments. Underline the word sediments and write the meaning broken rocks. अब क्रैक होने से,
टकराने से, गिरने से वो टूट जाते हैं और टूटे हुए रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स. सो राइट द मीनिंग ब्रोकन रॉक. अभी सेडिमेंट्स कहाँ पर है वो मिल गया ना. अभी कोई पूछना मत मुझे. मिला? यस और नो? Okay, so these sediments, that is broken rocks, are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. Compress मतलब वो प्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं. कंप्रेस मतलब प्रेस करना. ओके. एंड दे आर हार्डन टू मेक फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक. जैसे अगर आप क्ले देखा है आपने, जो खेलने वाला क्ले आता है, अलग अलग कलर्स में आते हैं, तो वो उससे आप शेप्स बनाते हो. कैसे? प्रेस करके हार्ड बनाते हो और देन द शेप्स आर मेड. तो रॉक्स में भी ऐसा होता है. दे ब्रेक डाउन, देन दे आर प्रेस्ड एंड दे बिकम हार्ड, मेकिंग न्यू शेप्स. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. समझ में आ रहा है ना? So these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. जो टूट के कंप्रेस हो गए, हार्ड हो गए, नया शेप मिलता है, वो नए शेप वाले रॉक्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Sedimentary rock. For example, sandstone is made from grains of sand. सैंडस्टोन एक टाइप का स्टोन है जो सेडिमेंटरी रॉक है, जो सीमेंट बनाने में काम आता है. शायद आपको पता हो. ओके. तो इग्नेयस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं बेसल्ट एंड ग्रेनाइट. सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जांपल है सैंडस्टोन. एनीथिंग टू आस्क? Okay, now there is something new given to us. Sandstone is made of grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Now what do you mean by fossils? Science में शायद आपने पढ़ा होगा. Any idea? Fossils? Yes. Fossil अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इट इज द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. Okay, when the plants die, when the animals die and the leftovers are there on the land itself, they get decomposed and they result into fossils. Now हमें पता है कि inside the water the rocks are deposited. ठीक है? We are talking about sedimentary rocks. ठीक है? ये पानी है और उसके अंदर there is a layer of sedimentary rocks. अब you know there are plants, animals, organisms in the water also. Sea plants, sea animals होते, पता है आपको? ठीक है. तो ये प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स है. अब उसके ऊपर एक और लेयर आ गया रॉक का, दूसरा वाला. फिर आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एक और लेयर आ गया. तो अभी ये जो बीच में ये वाले ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या होगा? क्या होगा? Which are living in between the rocks, what will happen to them? Yes, वो कंप्रेस हो जाएंगे, वो हार्ड हो जाएंगे, वो मर जाएंगे और वहीं पर उनके डेड बॉडीज पड़े रहेंगे, उनकी लाश वहीं पर पड़ी रहेगी. ओके. तो व्हाट हैपेंस कि उनके जो लेफ्ट ओवर है, उनके जो रिमेन्स है, वो रॉक्स के बीच में पड़ के डिकम्पोज हो जाते हैं. तो व्हेन यू ब्रेक अ सेडिमेंट्री रॉक, तो उसमें से मिनरल्स तो मिलते ही मिलते हैं, बट फॉसिल्स आर ऑल्सो फाउंड. एम आई वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है अभी सबको? ओके. नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ रॉक विच इज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक के लिए हमें कौन सा वर्ड याद रखना है? इट इज अ मिक्सचर. ओके, कॉम्बिनेशन. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. दोनों रॉक्स जब मिक्सचर होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. और मिक्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ प्रेशर. दे फॉर एग्जाम्पल clay changes into slate and limestone changes into marble. These are the examples of metamorphic rock. Clay है,
क्ले को टेम्परेचर दोगे, प्रेशर दोगे तो वो स्लेट बन जाएगा ऐसे फ्लैट। सिमिलरली लाइमस्टोन गेट कन्वर्टेड इनटू मार्बल। मार्बल सबने देखे हैं हमारे बहुत सारे घरों के, अगर आपको स्कूल याद है तो हमारी फ्लोर है वो मार्बल का बना है, वो स्टेज और वो सब याद है आपको, दैट इज द मार्बल। ओके, सो आई विल रिपीट। Basalt and granite are the examples of igneous rocks. Sandstone is an example of sedimentary rocks. Slate and marble are the example of metamorphic rocks. Any doubts in these three types of rocks? Anybody? Yes, Raj. लाइमस्टोन इट इज अ टाइप ऑफ अगेन अ रॉक जिसमें मिनरल्स कम होते हैं, सैंड ज्यादा होता है और वो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ओके, फिर वो रंगोली के कलर्स होते हैं उसमें भी ये यूज होता है। ओके, नाउ लेट अस सी सम इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। वैसे ही हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट आर फॉसिल्स? आई थिंक यू ऑल नो व्हाट आर फॉसिल्स। यस और नो? यस, देखो पूर्व ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है। चौक इज मेड ऑफ लाइमस्टोन। चौक जो है ना हम लोग ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं उसमें भी लाइमस्टोन यूज होता है। ओके, वेरी गुड पूर्व। चलो, व्हाट आर फॉसिल्स? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। ये तो पता ही है ना, एनीथिंग टू एक्सप्लेन? No. Okay, now you can see there are two pictures given to you. Can you all see the pictures? Can you see the pictures? Okay, now first picture shows us the rock cycle. Rock एक cycle की तरह है, जैसे first there will be a volcanic eruption. वॉल्केनो में से निकलेगा लावा, लावा में से बनेंगे इग्नेयस रॉक्स, इग्नेयस रॉक्स टूट के चले जाएंगे पानी में जिससे बनेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर दोनों का मिक्सचर होगा जिससे बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक। वो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो क्रस्ट के अंदर जाएगा बिकॉज ऑफ विंड, रेनफॉल, प्रेशर एटसेट्रा। और जब वो क्रस्ट में व्हेन देयर विल बी लॉट ऑफ हीट इट विल अगेन इरप्ट इनटू अ वोल्केनो, और जैसे ही वोल्केनो इरप्ट होगा इट विल गिव आउट लावा। Lava will be converted, cooled down, solidified and converted into igneous rocks and the cycle continues like this. You know what is the cycle? तो इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। Is it very clear all of you? रॉक साइकिल में any doubts है? Any doubts? Anybody? Any doubts? रॉक साइकिल समझ में आ गया कैसे साइकिल चलता रहता है? एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ वोल्केनो। वैसे वोल्केनो तो हमने बहुत बार देखा है। यू कैन सी अर्थ इज गिवन कोन, एक कोन के शेप का होता है, माउंटेन जैसा दिखता है और उसमें क्रेटर होता है। क्रेटर मीन्स एन ओपनिंग जहां से लावा कम्स आउट। कैन यू अंडरस्टैंड द पिक्चर ऑफ वोल्केनो? ओके, अभी किसी को ये दोनों पिक्चर्स में कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, रॉक साइकिल या वोल्केनो। नोबडी? ओके, अब ये जो रॉक साइकिल है मैंने अभी जो आपको शॉर्ट में समझा दिया। रॉक साइकिल में क्या होता है? वोल्केनो, लावा, इग्नेयस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, कूल डाउन, it goes inside the crust, again comes out from volcano. ये साइकिल जो है वही हम लोग रीड करने वाले हैं इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 54. Let us see. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. ये साइकिल कभी ब्रेक नहीं होती है, ये सीक्वेंस ऐसे ही होता है। इग्नेयस के बाद ही सेडिमेंट्री होता है, सेडिमेंट्री के बाद ही मेटामॉर्फिक होता है, ये कभी ब्रेक नहीं होता। Okay, Dhey, stop talking. This process of transformation of rocks is called a rock cycle. You have already learned that when the molten magma cools, it solidifies and becomes igneous rocks. सबसे पहले कौन से rocks बनते हैं? Which rocks are formed first? Igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles. Those are transformed and deposited to form sedimentary rocks.
फिर उसके पीसीस हो जाते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, दे बिकम सेडिमेंटेड. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. फिर दोनों का mixture होता है metamorphic. You know the cycle now? Is it easy now? The metamorphic rocks which are still under extreme heat and pressure melt down to form molten magma, and this molten magma cools down and solidify into igneous rocks. वापस वो मेटामॉर्फिक रॉक अर्थ के अंदर जाते हैं, मोल्टन हो जाते हैं. वो मोल्टन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हीट दे एक्सप्लोड आउट इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो, एंड अगेन दे बिकम igneous rocks. So this is the cycle which goes on and on and on. Any doubts in the rock cycle? Any doubts? No doubt? Okay, go to the next page. Rocks are very useful to us. Yes, Tarang is having doubt. Bolo Tarang. Now see the next page 55. Rocks are very useful to us. अच्छा, rocks का क्या काम आ सकते हैं? Rocks से हम क्या कर सकते हैं? किसी की विंडो का कांच तोड़ना है तो काम लगेगा. बाकी हम लोग rocks का क्या करेंगे? Do you think rocks are useful? Yes or no? कुछ तो यूजेस होंगे रॉक्स के, है ना? सिर्फ कांच तोड़ने के काम नहीं आएंगे. लेट अस सी. Rocks are very useful to us. The solid rocks are used for making roads, houses and buildings. सबसे पहले rocks are useful in the construction purposes. Okay, for building of roads, bridges, कुछ भी बनाना है rocks are very useful. और आपने देखा है rocks को, देखा है कंस्ट्रक्शन में. Rocks are made up of different minerals. Now if you break a rock, then you get lot of minerals from the rocks. Like किसी rock में बहुत ज़्यादा iron होता है, किसी में copper होता है, gold होता है, diamonds होते हैं, right? So ये minerals, they are very useful to us. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and definite chemical composition. हर एक रॉक में कोई ना कोई मिनरल होता है. Some minerals are in higher quantity, some are in less quantity. Okay, minerals are very important to mankind. Some are used as fuels. For example, coal, natural gas, mineral oil, petroleum, etc. Coal, petroleum, all these are used as fuels. Fuels meaning they are used in running of vehicles or running of machines. मशीन्स में फ्यूल यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स. सो इनडायरेक्टली रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रॉक्स में से मिनरल्स, एंड मिनरल्स में से वी गेट लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ओके, दे आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इवन फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. इंडस्ट्रीज में भी, सपोज टेक एन एग्जांपल आयरन. तो छोटे से पिन से लेकर बड़ा सा मशीन, इट इज मेड ऑफ आयरन. Okay, iron we use it many places. Then aluminium. Aluminium is used for domestic purposes. घर की बहुत सारी चीजें aluminium से बनती है. Gold, I think you know the uses of gold. And uranium. Uranium is used for making explosives. Weapons बनाने के लिए, research activities में uranium is useful. Okay, so these are the uses. अगर आपको पूछा जाता है that mention the uses of rocks, then this paragraph will be your answer. Can you understand? Yes, Tarang is having a doubt. Yes, Tarang. So do you understand clearly what are the uses of rocks? Okay, remaining landforms will continue in the next lecture. Any queries, any questions? Shall we end the lecture? Okay, chalo. Bye bye both of you. Have a nice day.